हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय तरुण मदान। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, साथ में एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m किलोग्राम एंड चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड length L meter long but of negligible mass. If theta is the angle each thread makes with the vertical when equilibrium has been attained, show that q square is equal to 4 ml square sin square theta tan theta into 4 pi epsilon naught. So यहाँ पर हमारे पास दो स्मॉल स्फीयर्स हैं, मास दोनों का m है। हम अज्यूम कर लेते हैं इनके बीच जो सेपरेशन है वो 2a है। इनके बीच जो सेपरेशन है वो है 2a। दोनों पर चार्ज q है, इक्वल चार्ज है, और ये दोनों मासिव पार्टिकल्स, मासिव स्फीयर्स L थ्रेड के साथ, L लेंथ की थ्रेड के साथ लटके हुए हैं। क्योंकि ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की है तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा F। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्योंकि स्फीयर का मास m है तो जो वेट है इस स्फीयर का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, विच इज mg। टेंशन थ्रेड के अंदर एक्ट करेगा T, क्योंकि ये एंगल भी थीटा है तो टेंशन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, T cos थीटा एंड T sin थीटा। सो हियर F is equal to T sin थीटा एंड mg is equal to T cos theta. T cos theta. Suppose that this is equation first and this is equation second. Divide equation first by second. So we get F by mg is equal to tan theta. F by mg is equal to tan theta. So tan theta is equal to F by mg. Suppose that this is equation third. We know the force of electrostatic repulsion is K. यहाँ चार्ज Q है, इस स्फीयर पर भी चार्ज Q है, सो Q स्क्वायर, इनके बीच हमने सेपरेशन कितना ज्यूम किया हुआ है 2a स्क्वायर। सो k q स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। सो व्हाट इज a? हियर a इज, हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा सकते हैं। अगर हम साइन थीटा लगा लेते हैं तो हमारे पास हियर साइन थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज साइन थीटा? Perpendicular by hypotenuse. So this is base, this is perpendicular, this is hypotenuse. So perpendicular is A and hypotenuse is L. So A is equal to L sin theta, which implies F is equal to K Q square by 4 L square sin square theta. So question third become F tan theta is equal to F, here F is K Q square by 4 L square sin square theta upon mg. So here into mg we have to find out Q square is equal to, so which implies Q square is equal to 4 L square sin square theta into mg by here tan theta
also by k. So what is k? K is 1 by 4 pi epsilon naught. So q square is equal to 4 mg l square sin square theta tan theta into 4 pi epsilon naught. Our next question is 5-point charges each of value q coulomb are placed on 5 vertices of a regular hexagon of side L meter. Find the magnitude on a charge minus q coulomb placed at the center of the hexagon. तो सबसे पहले तो हम हेक्सागन बनाते हैं. हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन गिवन है L मीटर साइड का. कोशिश करते हैं कि ये प्रॉपर हेक्सागन बने. सपोज दैट दिस इज हेक्सागन ऑफ साइड L मीटर, each side L meter, and O be the, suppose that O be the center of this hexagon, and 5-point charges each of value plus q coulomb are placed on 5 vertices of a regular hexagon. So let us suppose this is point A, B, C, D, E and F. So plus q coulomb charge is placed at A, at B, at C, D and at E. 5. 1, 2, 3, 4 and 5. Find the magnitude on a charge minus q coulomb placed at the center of hexagon. So minus q coulomb charge is placed at the center of hexagon. Here this is regular hexagon of side L. Then the diagonal of this hexagon is same, and the distance between center O and each vertices are same. So here OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD is equal to OE and OF. ठीक है, ये सब जो डिस्टेंसेस हैं सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे. तो अब हम यहाँ बात करते हैं फोर्स की. तो यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू कुलाम, यहाँ चार्ज है माइनस क्यू कुलाम, यहाँ चार्ज है प्लस क्यू कुलाम माइनस क्यू कुलाम, प्लस क्यू कुलाम माइनस क्यू कुलाम, प्लस क्यू कुलाम माइनस क्यू कुलाम, प्लस क्यू कुलाम माइनस क्यू कुलाम. सो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है के Q1 Q2 मीन्स क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस हम सपोज दैट इसको ए अज्यूम कर लेते हैं, ये डिस्टेंस ए है तो ए स्क्वायर डिस्टेंस हो गया सपोज दैट ए स्क्वायर. लेकिन अगर हम बात करें डायगोनल की तो साइड की डबल होती हैं, ट्वाइस होती हैं, तो हम इसको जो ए है यहाँ पर वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा एल के इक्वल. तो एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर. दिस इज फोर्स हमने निकाला है सपोज दैट ए का, ए और ओ के बीच में मीन्स प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ जितने भी चार्जेस हैं वो सेम है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू एंड सो ऑन, और डिस्टेंस है सबका सेम है. ठीक है, नाउ डायरेक्शन की बात करें अगर हम फोर्स की, तो प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, तो ये फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो सपोज है कि डायरेक्शन हो गई फोर्स F1 की, क्योंकि यहाँ सारे फोर्स इक्वल हैं तो F लेकर चलते हैं F की. यहाँ भी डायरेक्शन सेम रहेगी, यहाँ भी डायरेक्शन F, यहाँ भी डायरेक्शन F, यहाँ भी डायरेक्शन F. अट्रैक्टिव फोर्स ले लिया हमने, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन. तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल हैं अपोजिट हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं अपोजिट हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो नेट फोर्स ऊपर बचेगा ड्यू टू चार्ज प्लेस एट C. सो हियर नेट फोर्स is F is equal to K Q square by L square due to charge placed
at C. This is our net force. क्योंकि F वर्टिसेस पर कोई चार्ज प्लेस नहीं है. अगर यहाँ पर भी कोई चार्ज प्लेस होता तो कोई चार्ज नहीं प्लस Q चार्ज ही प्लेस होता तो ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाते. लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज प्लेस नहीं है तो जो नेट फोर्स होगा वो ड्यू टू चार्ज प्लेस एट C होगा. Our next question is, two equally charged identical spheres A and B repel each other with a force of 2 into 10 raised power minus 5 Newton. Another identical uncharged sphere C is touched to A, then placed at the midpoint between A and B. What is the net electrostatic force on C? यहाँ हमारे पास दो identical spheres given है A and B. Suppose that this is A and this is B. हम assume कर लेते हैं इस A स्फीयर पर चार्ज Q है और B स्फीयर पर भी चार्ज Q है, आइडेंटिकल है, इक्वली चार्ज आइडेंटिकल स्फीयर्स, चार्ज सेम है और assume कर लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस है R. So two equally charged identical spheres A and B repel each other with a force of 2 into 10 raised power minus 5 Newton. हमें इन दोनों के बीच का फोर्स गिवन है. F is equal to K Q1 Q2 Q into Q square by distance is R. So R square is equal to 2 into 10 raised power minus 5 Newton. Now Another identical uncharged sphere C आइडेंटिकल है, तीसरा स्फीयर अनचार्ज है, इस टच टू ए के साथ टच कराएंगे क्योंकि वो अनचार्ज है और आइडेंटिकल है. तो जब ए के साथ टच कराएंगे तो ए पर चार्ज आ जाएगा Q/2 हाफ हो जाएगा, बी पर चार्ज Q ही रहेगा और इनके बीच का सेपरेशन तो R है ही. फिर कहता है देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रख दिया सी को और इस पे भी चार्ज क्या है Q/2. व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी? अब हम यहां एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि सी अनचार्ज था तो ए से टच कराने के बाद सी के ऊपर चार्ज आ गया, सी ने चार्ज लिया है तो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आएगा. हम एज्यूम क्योंकि हम जनरल फॉर्म लेकर के चल रहे हैं तो हम Q/2 ले लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव. हम यहाँ नेगेटिव भी लेंगे तो भी हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी अपोजिट आएगी. देन फोर्स ऑन चार्ज C ड्यू टू चार्ज A. हम C के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं ड्यू टू चार्ज Q/2 एट A. सो फॉर्मूला इज K Q1 Q2 by R square. सो हेयर Q1 is Q/2, Q2 is Q/2 by distance is R/2 square. So force will be K Q square by R square. This is force on sphere C due to sphere A. Now force on sphere C due to sphere B. Formula is K, Q1 is Q, Q2 is Q/2 by distance is R/2 square. So force on sphere C due to sphere B is 2K Q square by R square. As FCB is greater than FCA, FCB इनके बीच जो फोर्स है वो ज़्यादा है FAC के रिस्पेक्ट में, CA के रिस्पेक्ट में, बिकॉज यहाँ जो चार्ज है B के ऊपर वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्फीयर A. सो नेट फोर्स ऑन C इज, C स्फीयर पर नेट फोर्स क्या होगा? F डैश इज इक्वल टू FCB माइनस FCA. सो 2K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर माइनस K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. यहाँ माइनस क्यों किया है? क्योंकि अगर ये फोर्स नेगेटिव है, अज्यूम करते हैं क्योंकि इसने चार्ज को लिया है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पर आएगा अट्रैक्शन, क्योंकि ये फोर्स भी नेगेटिव है तो इधर आ जाएगा
अट्रैक्शन। सो फोर्स F1 हम यहाँ नाम देते हैं FCA और दिस इज फोर्स FCB। सो FCB ज़्यादा फोर्स है, सो here net force is KQ² and net force KQ² is given 2 into 10⁻⁻5 न्यूटन। ये वैल्यू हमें गिवन है KQ²/r²। दिस इज द नेट फोर्स ऑन स्फीयर C। Our next question is an inclined plane making an angle of 30 degree with the horizontal is placed in a uniform horizontal electric field of 100 volt per meter. A particle of mass 1 kilogram and charge 0.01 coulomb is allowed to slide down from rest from a height of 1 meter. If the coefficient of friction is 0.2, find the time it will take for the particle to reach the bottom. एक inclined plane है जिसपे एक मास पार्टिकल, इसका मास दिया हुआ है हमें 1 किलोग्राम, मास ऑफ पार्टिकल इज 1 किलोग्राम एंड चार्ज ऑफ दिस मास इज 0.01 कूलम। सो इसका हमें मास गिवन है, चार्ज भी गिवन है। एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन है वो भी यूनिफॉर्म है। सो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी, QE फोर्स की डायरेक्शन। सो mass of this object is 1 kilogram and weight of this body acting vertically downward mg। तो इस वेट को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, mg cos, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है तो cos 30 एंड mg sin 30। वैसे ही QE को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, QE cos 30 एंड QE sin 30। क्योंकि यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। हमेशा एंगल ऑफ फ्रिक्शन बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो दिस इज F। जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे आएगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा वो होगा सपोज एट x। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है, फाइंड द टाइम इट विल टेक फॉर द पार्टिकल टू रीच द बॉटम, कि इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे इस पॉइंट पर आने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाए तो हम टाइम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है 1 किलोग्राम मास का, ये 1 मीटर हाइट पर प्लेस है। यहाँ में गिवन है ए पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड चार्ज 0.01 कूलम इज अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट पर है, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। इसकी जो हाइट है वो है 1 मीटर। इट मीन्स यहां पर पार्टिकल है और ये जो हाइट है ये 1 मीटर है और ये हमने x अज्यूम की हुई है, ये एंगल है 30 डिग्री है। तो हम यहां से x फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम फिगर sin 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 1 by x। so x is equal to 1 by sin 30 which is 1 by 2, so x is equal to 2 मीटर। तो x हमारे पास है 2 मीटर। नाउ फ्रॉम
Second equation of motion. What is second equation of motion? S is equal to ut plus half at square. Here object जो particle है ये rest पर है. Particle is placed at rest. It means u is equal to 0 and s is equal to x. So s, which is also equal to x, is equal to half at square. So t is equal to 2x by a in square root. Here x is 2 meter. So 4 by a in square root. Now we have to find out acceleration of this particle. तो हमें acceleration find out करना है. तो acceleration के लिए हम अपने फिगर पे आते हैं. फ्रॉम फिगर हम सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे. नॉर्मल रिएक्शन ऑन द पार्टिकल. R इज इक्वल टू, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा पार्टिकल के अपवर्ड डायरेक्शन में होता है. R, सो R किसके इक्वल है? QE sin 30 प्लस mg cos 30. QE sin 30 plus mg sin 30. This is R. Now what is frictional force? Frictional force क्या होगा? क्योंकि हमें यहाँ पर म्यू गिवन है 0.2 coefficient of friction. So F is equal to mu R. This is R. So F is equal to 0.2 into Q. Q हमारा है 0.01. E हमारे पास है 100 वोल्ट पर मीटर. Sin 30 1/2 plus mass of object is 1 kilogram. G is 9.8 and what is here mg cos 30. Here cos 30, not sin 30, cos 30. So cos 30 is under root 3 by 2. So when we solve this we get 1.799. This is force, so unit is Newton. Now we have to find out net force. This is net force in downward direction. F is equal to mg sin 30 माइनस इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है QE cos 30 और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में F मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स माइनस F. दिस इज नेट फोर्स. सो F इज इक्वल टू मास इज 1 किलोग्राम 9.8 sin 30 is 1/2 minus QE. Q is 0.01 coulomb. E is 100. Cos 30 is root 3/2 minus F is 1.799. This is net force. So F is equal to ma, which is equal to same 9.8/2 minus 100 cancel out, so root 3/2 minus 1.799. Here acceleration is equal to mass is 1 kilogram, so 9.8/2 minus root 3/2 minus 1.799. So here acceleration is 2.235 meter per second square. Now this is acceleration. Suppose that this equation first, so equation first become t is equal to 4/2.235 in square root. So अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टाइम आ जाता है 1.34
सेकेंड। तो इस पार्टिकल को 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में इंक्लाइंड सरफेस पर कितना टाइम लगेगा? 1.34 सेकेंड। So our next question is, a charge 10 raised power minus 9 coulomb is located at the origin in free space and another charge q at 2, 0, 0. If x component of the electric field at 3, 1, 1 is 0, then calculate the value of q. हमें एक चार्ज गिवन है 10 raised power minus 9 coulomb ओरिजिन पर, मीन्स 0, 0, 0 पॉइंट पर, और एक चार्ज गिवन है 2, 0, 0 पॉइंट पर, क्यू चार्ज गिवन है 3, 1, 1 पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स कंपोनेंट 0 है। तो सबसे पहले हम R1 वेक्टर निकाल लेते हैं। दिस इज सपोज एट R1 वेक्टर एंड दिस इज R2 वेक्टर। So R1 vector is यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 माइनस 0 आई कैप, 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 1 माइनस 0 के कैप, के कैप। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। सो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं R1 का तो वो आ जाता है स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हियर R1 वेक्टर इज 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सो R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 1 इन स्क्वायर रूट 11। दिस इज R1 वेक्टर। देन R1 कैप, R1 वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ये आ जाता है हमारे पास 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय अंडर रूट 11। सिमिलरली हम R2 वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। R2 वेक्टर इज 3 माइनस 2 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 1 माइनस 0 के कैप। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो यह आ गया R2 वेक्टर। हम R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 रूट 3। सो व्हाट इज R2 कैप? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 3। सो हमने यहाँ पर R1 वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड R1 कैप, R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड R2 कैप ये फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट P। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? सो के Q बाई R1। हमारे पास यहाँ एक इस Q के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और एक कैपिटल Q के रिस्पेक्ट में। सो के Q बाई R1 वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस के Q बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप। तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। E वेक्टर इज इक्वल टू के, here Q is 10 raised power minus 9, R1
वेक्टर हम मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं, √11 स्क्वायर इंटू r1 कैप, दिस इज r1 कैप 3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन √11, दिस इज k क्यूब बाय r1 स्क्वायर r1 कैप प्लस k क्यू, कैपिटल क्यू हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। r2 मैग्नीट्यूड r2 का निकाल चुके हैं √3 स्क्वायर r2 कैप, दिस इज r2 कैप i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बाय √3, दिस इज E वेक्टर। हमारे पास कंडीशन है इफ द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 311 इज 0, तो ये हमने 311 पॉइंट यानी कि P पॉइंट पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। तो कहते हैं इफ द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट जो है वो P पॉइंट पर एट पॉइंट P क्या है 0 है, तो सबसे हम इसका x कंपोनेंट निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाकी कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, सिर्फ x कंपोनेंट रहेगा। सो k कॉमन ले लेते हैं, दोनों के लिए आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁹ बाय हेयर 11 रूट स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल 11, यहाँ पावर है 1/2 तो 11 पावर आ जाएगी 3/2, दिस इज i कैप प्लस q बाय 3 पावर 3/2, तो ये आ जाएगा i कैप। ओके, देन if ex vector equal to 0, then which implies k 3 into 10⁻⁹ by 11 power 3/2 plus q by 3 power 3/2 i cap is equal to 0, then q, हमें q फाइंड आउट करना है, then q is equal to 3 इंटू, यहाँ माइनस का आ जाएगा, चार्ज अपोजिट साइड जाएगा, माइनस आ जाएगा, -3 इंटू 3 पावर 3/2 बाय 11 पावर 3/2 इंटू 10⁻⁹ when we solve this, then we get q is equal to -0.46 into 10⁻⁻6 coulomb. This is the charge q. Calculate the value of q. This is q.